Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Now, today this is science class. We'll read chapter number 12, that is water cycle. Dear students, you have read about water in the previous chapter. You have read water, definition of water and sources of water. Now, in this unit, this chapter, we'll read about forms of water and water cycle. Dear students, as the name indicates here, cycle, water cycle, that means it's continuous movement of water on, above and below the surface of earth. That is, as the name indicates, cycle. If you will start from the point on the cycle, for example, here is a circle, cycle in the form of cycle is in the form of a circle. For example, you will start from a point and you will move on this circle. Can you find any end point in this? No, you will not find any end point on the circle. So that's why here water cycle means water has no end point because it is forms its change. It changes its forms. It changes its forms and it moves continuously on the surface of earth. मिसाल के तौर पर वाटर जो होता है स्ट्रीम, उसमें ये स्टीम में भी चेंज होता है और आइस में भी चेंज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हियर विल सी अबाउट these forms, and here are some learning objectives. That is, when you complete this lesson, what should you do? You must state how water changes from one form to another. आप ये जान सकोगे कि कैसे एक वाटर की जो एक फॉर्म है दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज हो सकती है. व्हाट इज द वाटर साइकिल एंड हाउ इट हैपन्स. वाटर साइकिल क्या होता है और ये कैसे होता है. हाउ इट हैपन्स. आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. आप आइडेंटिफाई कर सकोगे ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर. ये भी आप जान सकोगे कि नेचर में कितनी फॉर्म्स ऑफ वाटर है. Dear students, here is a puzzle given. Here you have to match these figures in this with these statements. For example, here is a pond. Now you have to match with this, that what is pond. Here is a definition that surrounded by land on all sides. Pond is a water body that is surrounded by land on all sides. तो पहले पॉइंट को बी के साथ मैच किया जाएगा. नाउ द सेकंड इज स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी जिसमें पानी बहता है. तो दैट इज नैरो देन रिवर विद लेस वाटर. इसमें पानी होता है कम और तंग होता है ये एज कम्पेयर टू द रिवर. Now the third is rain. Rain, you have seen this, that is the small droplets of water falling from the sky on the earth. So here we will match this with the rain with this statement, that drops of water that fall from clouds. Number fourth is river. River, you might have heard about rivers, that these are the large streams, water bodies, है ना. So here is a definition of a river, that a large stream flowing into sea. ये जो दरियाओं में पानी होता है ये लास्ट में किन में बहता है. that the water of the large streams, these rivers, flow into the sea. समंदर में जाता है पानी इनका. तो यहाँ पे sea है, that is a large water body, huge water body, बहुत बड़ी होती है, but its water is salty, है ना. तो huge salty water body. Right? Okay, very good. Now we will read here some forms of water. ठीक है. We'll read here forms of water. There are 3 forms of water on the earth. Water exists in 3 forms. First, liquid,
that is water. Liquid form of water is known as water. Solid form of water is known as ice, and gaseous form of water is known as steam, or we can say water vapor is the gaseous form of water. Gaseous form of water is known as steam or water vapor. We can say it also water vapor. Now here we will read that how water changes into different forms. We mostly see the water in the form of liquid. हम जो ज़्यादातर पानी देखते हैं, ज़्यादा पानी जो मौजूद होता है ज़मीन पे, वो हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, लिक्विड शक्ल में देखते हैं. जस्ट लाइक कि हम वाटर देखते हैं, दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. वी ऑल्सो कॉल इट वाटर. तो हम ज़्यादातर यही हम देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी हम पानी देख रहे हैं वो वाटर की शक्ल में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ज़्यादातर. तो अब हम कहते हैं कि इसके और फॉर्म्स भी है, जैसे सॉलिड फॉर्म है, आइस बोलते हैं हम इसको, ये भी हमने देखा है. स्टीम भी हमने देखा है, दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर. तो अब हम देखेंगे कि ये चेंजेस कैसे आते हैं, कहाँ क्यों कैसे बनते हैं ये फॉर्म्स इसके वाटर के. अगर हमारे पास अभी वाटर, क्या हम इसको आइस बना सकते हैं, क्या हम इसको स्टीम में चेंज कर सकते हैं, वही हम देखेंगे कि हम ये फॉर्म्स ऑफ वाटर जो है कैसे चेंज किए जाते हैं. फर्स्ट वी विल सी वाटर चेंजेस इनटू आइस. हाउ वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू आइस. ऑन कूलिंग, जब हम वाटर कूलिंग पे रखेंगे, इसका टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, तो इट चेंजेस इनटू आइस. हम वो कैसे करते हैं वाटर का ये जो टेम्परेचर है कम, वी फ्रीज इट, फ्रीजिंग की वजह से. ठीक है, सॉरी आई हैव रिटन हियर इनकरेक्ट, फ्रीजिंग. तो अब ये फ्रीजिंग कैसे होती है, देखो बेटा, विल रीड हियर सम एक्टिविटी. अब पानी ला, पोर वाटर इनटू एन आइस ट्रे एंड प्लेस इट इन द फ्रीजर. After some time you will find that the water has changed into a hard substance called ice. Ice is another form of water. Water changes into ice on cooling by a process called freezing. तो कैसे आपको पानी लाना है, आपको वो आइस ट्रे में रखना है. पानी आप गिलास में भी रख सकते हो, या मतलब किसी बाउल में भी रख सकते हो. तो फिर आपको उस पानी को क्या करना है, ये जो आइस ट्रे है इसमें पानी आपने भरा, या गिलास में भरा या बाउल में भरा, तो ये आपको फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, फ्रीजर में. जो इसका एक कंपार्टमेंट होता है, फ्रिज का एक कंपार्टमेंट फ्रीजर, उसी में रखना है. तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, वाटर चेंज हुआ होगा हार्ड सब्सटेंस में. वो इतना हार्ड होगा, सख्त होगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा. दैट इज नोन एज द हार्ड फॉर्म ऑफ द वाटर, दैट इज नोन एज आइस. उसी को आइस बोलते हैं. जब हम फ्रीजर से थोड़ी देर बाद निकालेंगे वो आइस ट्रे, तो वो हार्ड बना होगा, दैट इज नोन एज आइस. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, राइट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज आइस चेंजेस इनटू वाटर. अब जब हमारे पास आइस बन गया तो इसको पानी भी बन सकता है. ये हम वाटर की शक्ल में कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको आइस लाना है. ये जो आप अपने फ्रीजर में आइस भरा, इसको क्या करना है, आपको ये बाहर निकालना है फ्रीजर से. फिर आपको ये थोड़ी देर रखना है, कहाँ पे, इन द रूम टेम्परेचर. निकालना है फ्रीज से बाहर, तो फिर आपको ये रूम टेम्परेचर में ही रखना है. ऐसे ही रखना है, हीट नहीं देनी है, ऐसे ही खुला रखना है. तो थोड़ी देर के बाद यू विल फाइंड हेयर द आइस हैज चेंज्ड इनटू वाटर अगेन. ठीक है, तो जब हम कभी, आपने देखा भी होगा, जब हम आइसक्रीम लाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म में होती है आइसक्रीम. जब हम पहले लाते हैं वो कुल्फी वाली आइसक्रीम, तो उसके बाद अगर हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं तो वो पिघल जाती है, दैट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म. सो द आइस चेंजेस इनटू वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग, राइट. नाउ वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. अब स्टीम में कैसे चेंज होता है, वाटर वेपर में कैसे चेंज होता है वाटर, तो इट गेट्स चेंज्ड इनटू स्टीम ऑन हीटिंग. जब हम पानी को हीट देते हैं
तो वो उसके बाद क्या होता है, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन ए पैन एंड पुट इट ऑन लिट स्टोव। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, आपको पानी लाना है एक पैन में, एक बर्तन में, आपको वो रखना है स्टोव पे या गैस पे या किसी भी मतलब दिस हीटिंग इंस्ट्रूमेंट पे। तो यू विल नोट्स दैट अ गैस स्टार्ट्स टू राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन द पैन। थोड़ी देर के बाद पानी उबलने लगता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो स्टीम निकल आता है, बह जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, और स्टीम भी बोलते हैं हम इसको, एंड वाटर वेपर भी बोलते हैं। तो वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम दिस वाटर सरफेस, है ना, पानी पैन में जो बर्तन में ये पानी होता है, जब ये बॉयल स्टार्ट होना होता है तो उससे सम वाटर वेपर से गैस सा उठता है इससे। दिस गैस फॉर्म्स व्हेन वाटर इज हीटेड इज कॉल्ड स्टीम और वाटर। तो ये गैस जो बनता है जब थोड़ा बॉयल होता है, जब हीट देते हैं हम पानी को, पानी ये बॉयल होने लगता है और इससे गैस राइज होता है, गैस उठता है, दैट इज नोन एज स्टीम एंड वाटर, स्टीम या वाटर वेपर। स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी एक वाटर की एक शक्ल है। वाटर चेंज इनटू स्टीम ऑन हीटिंग। तो अब आप अगर कोई बताएगा कि ये जो स्टीम होता है, ये जो वाटर होता है ये कैसे स्टीम में चेंज होता है, इट चेंज इनटू स्टीम ऑन हीटिंग। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, जब ये वाटर वेपर अब बन गया तो हम इस पे फॉर एग्जांपल पैन पे हमने ढक्कन रखा, व्हेन कोल प्लेट इज हेल्ड ओवर द पैन ऑफ हॉट वाटर। अब इसे गैस राइज होता है तो हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, कूल ढक्कन वो होता है, कूल लिड। यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लेट। फिर जब हम प्लेट उठाते हैं तो उसमें उसके नीचे होते हैं वो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स when steam is, when we take a cool lid on this steam, it gets changed into water again. ठीक है? Hope you will have understood these points, these forms of water. Allah Hafiz.